painful at all. Yeah. So this is the fine needle Okay. which we insert to the particular points Okay, on the so- patient, which is a traditional acupuncture concept. Okay. So we'll stimulate that particular point according to the disease condition, and it's just fine hair-like structure, so it won't be painful. So we have to apply this fluid, sir. Can you just please bend it, sir? Yeah. Just relax your muscle. Yeah. Shall we just take a deep breath in, breathe out. Is it much painful, sir? I hardly felt it. Yeah, yes, sir. So same way we have to do stimulation techniques, sedation techniques, like this to twist the needle and all. It won't be much painful, sir. This is the technique we have to use. It is a single use it is, and after that we will throw it. Hi, my name is Dr. Siddharth Shankar. I am the Vice Chancellor of Indira Gandhi Technological and Medical Sciences University, Zero. So today we had the opportunity of hosting the Honorable Governor of Arunachal Pradesh in our university. We had been requesting him for quite some time to pay a visit to our university. We are one of the very few universities which, in spite of being a private university, have insisted upon governor being the visitor in our university. So we are a very transparent university in that sense. We wanted to show him all that we are doing, the facilities that we have, the kind of teachers that we have, what kind of students we have, how we are training them, different kinds of things. Basically to give him a snapshot of the kind of future that we are building for the state of Arunachal and for the rest of India. We are very happy to see that an Honorable Governor was very satisfied with whatever he has seen. We are very hopeful that we'll be able to host him in the month of June once again, or possibly July, hopefully June. So we are launching so many other courses, so many other initiatives for the welfare of the people of Zero and for Arunachal Pradesh. So we want everyone in Zero and Arunachal Pradesh to know all that we are doing for them, how we can be of use to the people of this state and India in general. How the youth of Arunachal Pradesh can have a very good future if they work with us. We are trying to reach out to the youth of Arunachal Pradesh, giving them a message that the future is bright for them if only they believe in themselves. Our job as university, as teachers, is to give this confidence to the people, to the youth, that they can achieve anything they want. It's just a matter of having faith in their abilities. We want to instill this faith among the youth. We are seeing that the youth of this state, and for that matter the whole of Northeast, are being derailed because of problems like drug abuse and unnecessary falling into the trap of mindless violence. So all those things can be corrected if the energy of the youth can be channelized in the right direction. As a university, we are trying to create that right channel which will encourage the youth of Zero to realize their full potential. This step was basically today, in fact, was a step in that direction. We hope that we'll be able to have many more such steps, and in partnership with the people, the media, and social organizations, or basically everyone, we hope to be able to give back to the people of Arunachal Pradesh in return for whatever they have given to us. Thank you so much. Sir, could you tell us how many courses is there in your university? We have around 15 courses in our university, mostly engineering, medical, paramedical, and management, and medical laboratory technology, things like that. Now we are also launching courses in fashion, media, hotel management. Shortly we shall also be starting courses in architecture, and we shall be restarting courses in law. Basically, we have a wide repertoire of courses available in our university, which can be very, very helpful to help the youth of Arunachal Pradesh and Northeast India in general. ओके सर ऐसा क्या कोर्सेज है जो हमारा जीरो में जो दूसरे कॉलेज पे नहीं है और आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं? जैसे कि ज़ीरो में जो सेंट क्लेरेट्स कॉलेज है या बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं,
नंबर वन, एक तो वो लोग कॉलेजेस हैं, तो कॉलेज होने की वजह से अंडर ग्रेजुएट के बियॉन्ड वो कोर्स करा नहीं सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं करा सकते हैं। दूसरा, उनमें से कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कराते हैं इस स्केल पे जिस स्केल पे हम कराते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, ये सब कोर्सेज जो हैं ये बहुत हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और ये कोई कॉलेज नहीं करा सकता है। ओनली a यूनिवर्सिटी कैन ऑफर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। तो वो हम कर रहे हैं और बेसिकली हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। उनमें एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद किसी को वेट करना पड़े जॉब के लिए। हम ये भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जितने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं सबके लिए हम टाई अप कर रहे हैं थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक श्योर कि वो जॉब यहाँ से कोर्स फिनिश करें और उनको ओवरसीज़ असाइनमेंट्स मिले। हमने जापान के साथ, जर्मनी के साथ टाई अप किया है कि हमारे स्टूडेंट्स को ओवरसीज जॉब्स मिले, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अरुणाचल प्रदेश। होपफुली हम अपने सारे स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दे सकेंगे। फ़िलहाल नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हम सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन खोल रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया है यहाँ पे। तो सर इतना फैसिलिटी होने का बावजूद भी यहाँ का जो स्टूडेंट है बाहर पे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसका ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा है ना कि ये एक सोशल एटीट्यूड है ना? ये धीरे-धीरे चेंज होता है ना? यूजुअली सोशियोलॉजी में लोग कहते हैं कि सोशल एटीट्यूड कम से कम एक जनरेशन में चेंज होता है। हमें यहाँ आए हुए 12 साल हुए, एक जनरेशन मतलब 20 साल होता है। इस 12 साल के दौरान धीरे-धीरे करके हमने चेंज किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यूथ के अंदर ये जो अट्रैक्शन जो है ऑफ बिग सिटीज़, ज़ीरो में जो एक आज का यूथ जो एक्सपोज्ड होता है वाइब्रेंट नाइट लाइफ, ये सारी चीज़ों के लिए, वो सब ज़ीरो में नहीं है। बट ऑल दोज थिंग्स विल कम स्लोली। कुछ कल्चरल इश्यूज भी हैं। ऑब्वियसली ज़ीरो को बॉम्बे नहीं बनाया जा सकता है, डिज़ायरेबल भी नहीं है। ज़ीरो इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज़ ज़ीरो। If zero becomes Bombay, then there would be nothing left in zero. So while maintaining the essence of zero, how best we can transform zero so as to make it attractive for its youth, वो हमें करना है और वो धीरे धीरे होगा। और वो सिर्फ हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। हम जितने यहाँ पे और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कैसे हम यहाँ के यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप यहीं रहो। बाहर जाने पे डबल ट्रिपल कॉस्ट आता है, तो वही सेम क्वालिटी का एजुकेशन अगर हम उनके होम टाउन पे देते हैं विथ अ कंपेरेबल एटमॉस्फेयर इनसाइड द कॉलेज। यूथ को क्या चाहिए? एक वाइब्रेंट कैंपस। हमने लैंड लिया है यहाँ पे, बहुत सफिशिएंट लैंड लिया है और उसमें हम एक ऐसा कैंपस बनाने जा रहे हैं विच विल बी अ शो पीस इन इट्स ओन राइट। और हम अपने यूथ को बिल्कुल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे दैट विल बी एनफ टू मोटिवेट देम बाय इटसेल्फ। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। पीपल आर चेंजिंग, यूथ आर चेंजिंग, वी आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सर जैसे कि आपने अभी मेंशन किए कि आप लोग कैंपस को बड़ा करने जा रहे हैं, तो ये कब तक हम लोग को देखने को मिलेगा? ये स्प्रेड आउट होगा। शुरुआत, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हम बहुत जल्दी कर देने वाले हैं। मे बी नेक्स्ट मंथ से हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और सबसे पहले हम उसमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हॉस्टल शिफ्ट होगा, फिर क्लासेज शिफ्ट होंगी और ये स्टैगर्ड होगा। हर 6 महीने में एक लैंडमार्क हमें अचीव करना है। तो और हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो होपफुली within 2 years we should be in a position to finish everything and give a great gift to the people of Zero. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है कि Of course. अपना स्टूडेंट, अपना बच्चा को कि यहाँ में पढ़ाई करो बोलने के लिए और बाहर भेजने के लिए, तो आप यहाँ का जीरो का कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए और ये एजुकेशन के लिए एक कमिटमेंट होना चाहिए, है ना?
तो पेरेंट्स जो भी होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं उनके एजुकेशन के लिए। जो बच्चों का ट्यूशन फी जाता है, जो कुछ भी जाता है, वो बेसिकली पेरेंट्स के एक्सपेंसेस में से कट के ही आता है ना। तो हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि उनको जो एजुकेशन चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, वो हम यहीं राइट हेयर इन ज़ीरो देंगे विथ अ प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेट फ्यूचर, है ना। हम साथ काम करेंगे, पेरेंट्स हमारे साथ, हम पेरेंट्स के साथ, और साथ मिलके हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर अ ग्रेट फ्यूचर इज़ हियर, राइट हेयर इन ज़ीरो। ये चीज़ थैंक यू है। सर। थैंक यू सो मच।